Hello students, so we are going to start a new chapter, that is national income accounting. What we are going to study in this, we are going to introduce the fundamental functioning of simple economy, how the economy is calculated. In this section we are going to study about some primary idea, right? Primary idea, how the calculation is done with the national income and the aggregate income of the country, entire country, going to the sector of economy. There are three sectors, right? Primary, secondary and tertiary. What is going on in three sectors, how they are to be calculated, so we are going to study in this part. It also different price indicates like GDP deflector. We are going to study consumer price index, wholesale price index. Discussion like this problem associated with taking GDP accounting indicator and the aggregate welfare of the people of the country. These all things has been studied in this book. Some basic concept of macroeconomic. Once a pioneer of the subject, we call economic today Adam Smith. Underline this word, Adam Smith. Name his most influential work and entire equity and inquiry into the nature and cause of wealth of nation. Right. What generate the economic wealth of a nation? One question arises by him, Adam Smith, कि ये देश की जो wealth है, how it can be calculated, what makes country richer, क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी को rich या किसी को poor बनाती हैं. These are some central question of economics in that country which are endowed with a bounty of natural wealth. बहुत country में natural wealth बहुत होता है, मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, फर्टाइल लैंड्स होती है, ऑल नेचुरली द रिचेस्ट कंट्री. इन फैक्ट द रिसोर्सेज रिच अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका हैव सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जबकि हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अफ्रीका और इन जगहों पे तो ज़्यादा है, लैटिन अमेरिका में, लेकिन पुअरेस्ट कंट्री है. there are line when the possession of natural resource was the most important consideration. एक ज़माना था जहाँ natural resource ज़्यादा होते थे, उसे rich कहा जाता था. लेकिन समय बदला, हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमने पाया कि वो कंट्री जहाँ नेचुरल रिसोर्स ही सबसे ज़्यादा हो, वो रिच हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. Now, the economic wealth or well-being of a country thus does not necessarily depend on the mere possession of resource. सिर्फ resource हो इसलिए वो country rich है, it is not possible. The point is how these resources are used, generating a flow of production and how consequence income will generated from. अब हम इसमें यहाँ देख रहे हैं रिसोर्सेस से कौन सी कंट्री इनकम जनरेट कर पा रही है, प्रोडक्शन कर पा रही है, इनकम अर्न कर पा रही है. लेट अस नाउ ड्वेल द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ डज दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेस. अब ये प्रोडक्शन कैसे होता है? पीपल कंबाइन द, हमने पहले भी बात की है कि व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurs, they were combined together, the production structure has been continued. In our modern economics setting, these flow of production arises out of the production of commodity, goods and services by the millions of enterprises, large or small. These enterprises raise from joint कॉरपोरेशन. अब अभी हमने कहा लैंड, लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर कोई चीज़ प्रोड्यूस करना. अब एंटरप्रेन्योर होता है जो कोलैबोरेट करता है. अब जब वो कोलैबोरेट करता है तो एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाता है टू अ सिंगल एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस. बट व्हाट हैपन दीज कमोडिटी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस. चलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद आखिर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ईच like pin or button is largest one, like aeroplane, automobile, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो. जब ये प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद क्या आता है? दैट ऑफ द डॉक्टर, द लॉयर, सर्विसेज तैयार हो जाती हैं. तो कंज्यूमर में इन टर्न, अब कंज्यूमर का टर्न होता है कि उनको हायर करे, उनको खरीदे, उन पे पैसा लगाए. इट इज़ इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइजेस. अब हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करें क्योंकि मैक्रो कर रहे हैं तो हम पूरे मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, और एंटरप्राइजेस की. गुड्स एंड सर्विसेज परचेस बाय द एंटिटी माइट बी अ फाइनल यूज़र. अब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है या तो वो फाइनल यूज़र्स के लिए लिया गया है या फिर प्रोड्यूसर के यूज़ के लिए लिया गया है. दस अ फार्मर
produce cotton cell in a spinning mill where the raw cotton undergoes transformation to yarn. The yarn is the into cloth. The cloth, अब ये हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रही है और प्रोड्यूस हो रही है, और मार्केट में वो जब सेल होने आ जाती है, जब प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर लेती है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, स्टेज कंप्लीट, वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड. नाउ वी कैन से दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विसेज इज फाइनल गुड. मान लो तुम लोग प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन और प्रोसेस में चल रहे हो. जब कैरियर में पैर जमा लोगे, जॉब करने लग जाओगे, यानी फाइनल सर्विसेज रेडी हो जाएंगी. तो व्हाट वी डू दिस फाइनल गुड्स, because once I have been sold, passes out from active economics flow, it will undergo further transformation at the hand of the अब गुड्स यदि डायरेक्ट सेल हुआ, प्रोडक्शन की उसने बाउंड्री क्रॉस कर ली और कंज्यूमर ने ख़रीदा तो कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया. लेकिन प्रोड्यूसर ने किया तो प्रोड्यूसर उसका इस्तेमाल करके और अर्न करेगा. इट विल नाउ अंडरगो अ फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेट परचेज. इनफैक्ट मेनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द कंजप्शन. कई बार कंजप्शन और परचेस करने के बाद उसे और किसी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाला जाता है. दैट इज़ हाउ इफ़ सम कुकिंग और अ टी ब्रेविंग वॉज डन इन रेस्टोरेंट. हम चाय पत्ती हमने हाउस होल्ड ने ख़रीदी, कंजप्शन कर लिया, कंज्यूमर गुड हो गया. लेकिन प्रोड्यूसर ने ख़रीदा और वो चाय या कॉफ़ी की फैक्ट्री या रेस्टोरेंट चलाता है, वहाँ चाय कॉफ़ी बेच रहा है, तो इसका मतलब उस चाय कॉफ़ी से यूटिलाइजेशन से और कुछ भी होने जा रहा है, क्योंकि उससे और पैसा मिलेगा. दैट इज़ अ फाइनल गुड. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.